Good morning, dear students. I'm Bharti Kathuria Saigal from the SD Vidya School, Ambala Kant. Yesterday we started with a new chapter, chapter number 8, Cell the Unit of Life. We discussed about cell theory. We also discussed about the discovery of cell, discovery of microscope, the types of microscope, and we discussed the structure of cell wall and cell membrane. Today, we are going to start with a new topic, that is, we'll be differentiating between prokaryotic and eukaryotic cells. So, the one that you can see in front of you is a prokaryotic cell, which is a bacterial cell. Here, what you can see is a simple structure, a simple cell, which has a cell membrane, which is bound by a cell membrane, and it can have a cell wall around the cell membrane. Then there can be another layer outside the cell wall, which we call as capsule. Capsule is a type of glycocalyx. Actually, glycocalyx, it differs in composition and thickness in different types of the bacteria. It can be in the form of a loose sheath. If it is in the form of a loose sheath, it is called as the slime layer. And if it is thick and tough, it is called as the capsule. Now, although they have this protective covering as in the form of capsule or in the form of slime layer, but finally the cell wall is the one which provides the shape, turgidity and rigidity to the cell and prevents it from collapsing. Now, next here we talk about flagellum. Now, bacterial cells can possess this special structure called flagella, which helps in the locomotion. Now, these flagella can again be present on entire surface or on one side as a tuft. Then they can have structure called as pili, which help in attachment to the substratum or even attachment between two different bacterial cells. Prokaryotes have this special type of DNA, which is a single circular DNA called as nucleoid, which is devoid of the nuclear membrane and is present directly in the cytoplasm. Ribosomes are present. As I told you, ribosomes are membraneless organelles. They are present in the prokaryotic cell. 70S type ribosomes are present. Another very important thing that I want to tell you about prokaryotes is they can have another self-replicating unit of DNA present other than the nucleoid, which is called as the plasmid. Now, plasmid provides additional qualities, additional special features to the bacterial cell like antibiotic resistance or others. Plasmids are very important for the point of biotechnology because plasmid के अंदर ही डीएनए या जीन इंसर्ट करके हम एक से दूसरे तक ट्रांसफर कर सकते हैं. सो ये जो आजकल बहुत सारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो चीजें यूज हो रही हैं जिसमें कि डीएनए का ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसमें प्लाज्मिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिससे कि डीएनए का ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल. Now, as you all can see, there are no special other cell organelles. इसके अलावा कोई और special cell organelles नहीं है. Now, next we talk about the plant cell. As you can see here, plant cell has a rigid cell wall around it. It has a cell membrane. It has a large sized vacuole. Now, this vacuole helps in providing the, again, it provides the turgor pressure. ये osmotic balance maintain करने में help करता है और साथ ही साथ ये store house है cell का. वेक्यूल की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेक्यूल के अंदर एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट. टोनोप्लास्ट जो है उसको स्पेशल परमिएबिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे कि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस ये स्टोर कर पाता है. देन वी हैव द नेक्स्ट दैट इज क्लोरोप्लास्ट. एज यू नो, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्लांट सेल्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें कि वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. Next is mitochondria. They have peroxisomes, they have Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, nucleus. Inside the nucleus can be a dense part which is called as nucleolus. Then there is a nuclear envelope, the smooth endoplasmic reticulum, as you can see, the plasmodesmata as we discussed earlier. So now let's discuss about the anatomy of the animal cell. Now in the animal cell, as you can see, there is no cell wall present. So there is just the cell membrane, which is the outside covering of the cell. Then there can be here, you can see the nucleus in the center. So in the case of plant cell, it is shifted towards the periphery because of the presence of the large sized vacuole. लेकिन plant जो animal cell है उसमें center में present रहेगा और इसके साथ ही attached रहेंगे endoplasmic reticulum, which is rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Then we have here the Golgi apparatus, the lysosomes, the plasma membrane, as you can see here, the smooth endoplasmic reticulum, and it also has ribosomes. Now the ribosomes present in prokaryotic were 70S type, but the ones present in the plant cell and animal cell are 80S type ribosomes.
Then they can have small vesicles. Next, we move on to differences between cell wall and cell membrane. Cell wall, as we discussed, it is a rigid, thick structure and visible in light microscope, while cell membrane is a very delicate and thin structure and is visible only in the electron microscope. As we discussed, it is the outermost layer. ये plant cell में present है, जबकि animal cell में जो outermost layer है वो रहेगी cell membrane. Cell membrane जो है lipids और proteins की बनी है, as we discussed. Carbohydrates भी कुछ हद तक present हैं glycoproteins के form में, glycolipids की form में. जबकि जो सेल वॉल है उसका कॉम्पोजिशन बेसिकली हमने डिस्कस किया था. दे कैन हैव सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन हमने डिस्कस किया. तो इसी तरह से काइटिन हो सकता है फंजाई के अंदर, या फिर बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन्स का हो सकता है. कंप्लीटली परमिएबल है सेल वॉल, जबकि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, राइट. एंड देन प्लांट सेल, बैक्टीरियम और फंगस के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल मेम्ब्रेन लेकिन सभी में प्रेजेंट होती है. इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल टाइप्स. मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एंड नॉन लिविंग होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और लिविंग होती है. जो सेल वॉल है वो डिटरमाइन करती है बेसिकली सेल की शेप और प्रोटेक्ट करती है प्रोटोप्लाज्म एंड मेंटेन्स अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टू द प्रोटोप्लाज्म. तो अंदर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने में हेल्प करती है, बिकॉज ये उन्हीं चीजों को अंदर लेती है, उन्हीं चीजों को सिलेक्ट करती है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल, और जो चीजें नहीं चाहिए उनको बाहर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है. Now, next we discuss about cytoplasm and nucleus. Now, let's start with protoplasm. Now, protoplasm is the living component of the cell. Now, cytoplasm is the jelly-like substance. आपको पता है जो jelly-like substance है जिसके अंदर सारी organelles present है और एक जितनी भी biochemical reactions होती हैं, as you all know, biochemical reactions की occurrence के लिए this is required. So जितने भी हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो उनके लिए साइटोप्लाज्म, द लिक्विड, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. देन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज को, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी चीज हो रही है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. क्योंकि इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है और डीएनए विल फाइनली गाइड, यही गाइड करेगा आगे कि किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे, और उन्हीं प्रोटीन्स पर डिपेंड करेगा कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है या किस तरह के फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहा है. Then we now talk in detail about the nucleus. Now, the structure of nucleus, if I talk about, nucleus consists, the outer structure is a double layered membrane, which is called as the nuclear envelope. Nuclear envelope में कहीं-कहीं pores होते हैं, which is called as the nuclear pores. ये basically help करते हैं transportation across the nucleus में help करते हैं. और nucleus के अंदर का जो plasma है, because वो it's not cell का plasma नहीं है, it's different, it's the nucleus प्लाज्म. सो इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप या कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं. तो बेसिकली जितने भी, ये एक तरह का मीडियम है जिसके अंदर आपकी न्यूक्लियस के अंदर की रिएक्शंस जो कैरी ऑन होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैरी ऑन होती है. देन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस, अंडरस्टैंड दिस कि ये कोई स्पेशल ऑर्गेनल नहीं है, कोई सेल का अलग ऑर्गेनल नहीं है, बल्कि कहीं जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जो डीएनए है, वो डेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो थोड़ा इकट्ठा हो रखा होता है, तो वो ज्यादा डार्क स्टेन लेते हैं. जब हम स्टेनिंग करते हैं तो वो डार्क स्टेन ले लेता है, तो उसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. अब बात करते हैं क्रोमैटिन के बारे में. तो जो डीएनए एंड प्रोटीन्स जो क्रोमैटिन मिलकर बनाते हैं, दिस इज बिफोर द सेल डिविजन. जब तक कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तब तक इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस एंटेंगल्ड मास ऑफ क्रोमैटिन. लेकिन जब सेल डिवाइड करेगा देन इट विल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. सो लेट्स सी हियर. हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ बहुत ही क्लियरली आपको डबल मेम्ब्रेन नजर आ रही होगी और बीच के ये न्यूक्लियर पोर्स नजर आ रहे हैं. एंड देन दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप. और इसके साथ ही कंटिन्यूएशन में आप देख सकते हैं कि क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है. नाउ जो फंक्शन है मेन न्यूक्लियस का कि कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो इसके फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, जीन्स, उन्हीं से ही हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स होता है. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन. क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड डीएनए से बने होते हैं, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको बताया. क्रोमैटिन होते हैं वो अनवोन्ड डीएनए, अभी वो बाउंड नहीं किया हुआ है, तो वो ओपनली, जैसे मैंने आपको बताया, एंटेंगल्ड मास की फॉर्म में पड़ा रहता है. क्रोमोसोम्स कब मिलते हैं सेल में? जब सेल डिवाइड कर रहा होता है. लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, इंटरफेस चल रहा है बिटवीन टू सेल डिविजन्स, इज कॉल्ड द इंटरफेस. तो जब तक कि इंटरफेस चलता रहेगा तब तक जितना हमारा जो नेटवर्क है डीएनए का, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन.
DNA is not being used for the macromolecule synthesis. इसमें से कोई macromolecules नहीं बनते once it takes the shape of the chromosome. लेकिन जब तक कि chromatin की form में है तब तक उसमें से macromolecules का synthesis चलता रहता है. So here you can see non-dividing cell के अंदर this is all the structure present here is chromatin, जो कि X-shaped structures आ जाएंगे in the dividing cell, जो कि help करेंगे in the purpose of cell division. Next we have here now kinetochores. अब kinetochores क्या होते हैं? बेटे एज यू कैन सी हियर, दो हमने बोला कि एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो डिस्कॉइड से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि उन दो, एक हम कह सकते हैं जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को इन प्लेस रखते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज द काइनेटोकोर्स. तो ये बेसिकली डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर दो अलग अलग जो हमारे जो यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनको एक साइड्स में से जहां सपोर्ट कर रहे हैं और उनको एक साथ रखने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द क्रोमोसोम नंबर. नाउ क्रोमोसोम नंबर डिफर्स फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग में 46 है, मंकी के अंदर 42 है, डॉग के अंदर 78 है, कैट के अंदर 38 है. दिस इज द डिप्लॉयड नंबर, राइट? सो दिस इज व्हाट इज प्रेजेंट इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. गिमीट्स में इसका हाफ होगा. फ्रॉग में 26, फ्रूट फ्लाई में 8, फ्लैटवर्म में 16. Corn, which is a plant, has 20, potato has 48, green algae has 20. Fungi अगर हम yeast की बात करें जैसे Saccharomyces cerevisiae की बात करें तो Saccharomyces cerevisiae में diploid form के अंदर 32 है, जबकि molds में Penicillium के अंदर haploid number है which is 4. Now next we talk about the centromere. अब centromere क्या होता है बेटे? centromere जहां हम यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो दो जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो इकट्ठे ज्वाइन हो रखे हैं फ्रॉम द सेंटर. सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द सेंट्रोमियर. डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. द वंस यू कैन सी हियर, द वन दैट यू कैन सी हियर जिसमें कि बिल्कुल कॉर्नर पर आ जाएगा आपका सेंट्रोमियर की पोजीशन होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज टेलोसेंट्रिक. जबकि यहाँ जहां बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा विच इज कॉल्ड एज द मेटासेंट्रिक. अगर थोड़ा सा सेंटर से दूर है तो सब मेटासेंट्रिक, right? Can you see this? This is submetacentric. अगर थोड़ा और बिल्कुल मतलब not exactly towards the end, but it is away from the submetacentric, then it is called as the acrocentric, right? So these are the different types of chromosomes on the basis of the position of centromere. So you can see this. So this is what we talked about: telocentric, acrocentric, submetacentric, and metacentric. Now prokaryotic versus eukaryotic cells. So in prokaryotic cells, the DNA is naked, while in the case of eukaryotes, it is bound to proteins. It is linear and usually has introns. Now, in organelles, introns are the part of the genes which do not code. I mean, जो आगे help नहीं कर रहे हैं, किसी भी coding में help नहीं कर रहे हैं. Organelles क्या होते हैं? जो organelles हैं इसमें कोई भी nucleus नहीं है, कोई membrane bound organelles नहीं है, 70S type ribosome है. जबकि eukaryotes में nucleus है, membrane bound cell organelles हैं, 80S type के ribosomes हैं. रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स इज बाय बाइनरी फिशन. इनमें एक ही क्रोमोसोम होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं और रिप्रोडक्शन होता है क्रोमोसोम्स के थ्रू विच आर पेयर्ड. सिंगल क्रोमोसोम नहीं है, पेयर्स में रहती है हमेशा. एवरेज साइज जो रहता है प्रोकैरियोटिक सेल का बहुत ही छोटा होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 5 माइक्रोमीटर रहता है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट 10 to 100 माइक्रोमीटर. नाउ वील बी स्टार्टिंग विद द सेल ऑर्गेनल्स इन द next video.